So let's continue with the nomenclature of organic compounds. So nomenclature is naming of organic compounds, which is generally done in two ways. One is the common or the trivial names, which are basically the old names derived from their commercial uses, which we had discussed last lecture. And the second one is the systematic way of naming the organic compound, which is called IUPAC. Yes, sir. What does IUPAC stand for? International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. So it's a body which devises rules for many of the organic related stuff, and also other standardization are done by this body. So IUPAC nomenclature has multiple rules, but let's understand the summary of these rules through the examples. So let's start with a very simple example of CH3, CH, CH3, CH2, and CH3. First question, does this compound have a common name? Does this compound have a common name? Yes, sir. Yes, and what is that? So N-butane. No. Does it look like a straight chain of all carbon atoms? Isopentane. Of course, isopentane. So iso के लिए there must be one carbon branched on second carbon of the straight chain, and for that we write the prefix iso. And common name में we always count the total number of carbon atoms in the compound, and which is 5 in this case. That is why isopentane. So two things to be understood. Common name में always count total carbon atoms. This is very useful and very important. Total carbons count करके 5 का pentane आया, and one carbon branched on second carbon as the prefix of iso. Now this isopentane can also be named in IUPAC. So I here stands for IUPAC name. And the first rule for IUPAC is select the longest chain of carbon atom. Select the longest chain of carbon atom, which in this case will be a chain of 4. 4. So left to right, जो carbon का chain है, that will be selected as the longest chain. Yes, sir. Now the longest chain which gets selected is called as the parent chain, which is giving you the information about the parent compound, which in this case will be Butane. butane. Parent का नाम मिल गया butane. अब जो भी parent का part नहीं होता है, that is basically the Functional group. substituent. नहीं, it may or may not be a functional group, but इस case में it's a carbon वाला chain, hence we simply call it as a substituent, substituted group. या फिर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ब्रांच बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको बोलता हूँ चाइल्ड. जो भी पेरेंट का पार्ट नहीं है, दैट विल बिकम द चाइल्ड. ठीक है, तो रूल नंबर 1 is the longest chain rule. When we apply that, we get two information, one about the parent chain and other about the substituent or branch or the child. ठीक है, second rule is lowest numbering rule, which says that number the chain of carbon atoms such that the substituent or functional group, if present, gets the lowest number. Number the chain such that the substituent or the branch gets the lowest number. अब अगर मैं लेफ्ट से नंबर करूं तो ब्रांच को क्या नंबर मिल रहा है? Second. सेकेंड. और राइट से करूं तो Third. लोवेस्ट नंबर कौन सा है? Second. सेकेंड. इसलिए द करेक्ट नंबरिंग विल बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एज 1, 2, 3 and 4. Correct. Now clubbing this information to get the IUPAC name, the nomenclature is very similar to the way we write our names. हम अपना नाम कैसे लिखते हैं? First, खुद का नाम, followed by parent name,
and then surname. Correct? Yes, sir. यहाँ Yes, sir. सरनेम जो है वो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप होता है, जो एक हाइड्रोकार्बन चेन में नहीं प्रेजेंट होता है. मतलब कोई भी हेटेरो एटम जब इंट्रोड्यूस हो जाए देन इट विल बिकम अ फंक्शनल ग्रुप, जो इस केस में एब्सेंट है. मतलब इस केस में खाली चाइल्ड का नेम, बच्चे का नाम और पेरेंट का नाम जुड़ा होगा. करेक्ट? व्हाट इज द बच्चे का नाम? चाइल्ड नेम Methyl. Methyl. मिथाइल. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट? Two methyl टू मिथाइल हो गया बच्चे का नाम, और पेरेंट का नाम क्या है? butane. Butane. ब्यूटेन. तो ये जो नंबर है 2, दैट इज कॉल्ड लोकेंट, because it gives you the information about location of the child. तो अब यहाँ पर we know that the child is located at second carbon. Child का नाम है मिथाइल और parent का नाम है ब्यूटेन. Hence the name 2-methyl butane. समझा? Yes, sir. Yes, sir. अब next example. CH3C, CH3, CH3, CH2 and CH3. Again, क्या इसका कोई common name है? Neohexane. Yes, neohexane. Because वापस there are 2 methyls branched on second carbon and the total number of carbon are. 6. तो neohexane clear हो गया नाम. Yes, sir. So, sir, I had to ask one thing. For neoatoms, will both the branches be on the same carbon atom या अलग-अलग पे भी हो सकता है? Has to be on the same carbon. अलग अलग पे होगा तो उसको neo नहीं बोलेंगे. तो तो उसे क्या definition में बोलेंगे? clearly क्या बोलते हैं कि the 2 methyls must be branched on second carbon. तो अगर सेकेंड पे ही दोनों ब्रांच है तो ही वो नियो होगा. अगर सेकेंड थर्ड या कोई और कार्बन्स में है तो उसका कॉमन नेम नहीं होगा, और जिसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है उसी का तो क्या करने वाले हम? नेम्स निकालना है आईयूपीएसी. ओके, थैंक यू. आईयूपीएसी में. समझा? ठीक है, थैंक यू सर. यस. तो अब आईयूपीएसी की बात करते हैं. तो वापस लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 4. 4. तो लॉन्गेस्ट में आपको पेरेंट का नाम क्या मिला? Butane. ब्यूटेन. और जो पेरेंट का पार्ट नहीं है वो आपके मिथाइल. सब्स्टिट्यूएंट्स चाइल्ड है. तो 2 मिथाइल है तो टुगेदर दे विल बी कॉल्ड Dimethyl. dimethyl. And where are they located as per the lowest number rule? 2. Numbering will be done from the left hand side 1, 2, 3 and 4. ठीक है? तो अब जब दो ब्रांचेस होते हैं तो उसके नंबर भी दो होंगे. तो 2,2 dimethyl will be the child name followed by the parent name which is butane. Now observe some important stuff. The first letter of any IUPAC name is capital. Rest all the letters are small. First letter capital, rest all are small. And number और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं और दो numbers are separated by comma. These are 3 basic rules. First letter capital, rest all small. Number और alphabet hyphen और दो numbers separated by comma. Now let's move to the next example. If I have a chain as CH3, CH2, CH, CH3, C पे CH3, CH3, CH2, CH3. अब मेरा पहला क्वेश्चन, क्या इसका कोई कॉमन नेम होगा? No. Why? इंडिया आईएसओ में फिट नहीं होता. करेक्ट. क्योंकि फिट होने के लिए द ब्रांच हैज टू बी ऑन सेकंड कार्बन. सेकंड कार्बन. और एक साथ नियो और आइसो का रिप्रेजेंटेशन किसी स्ट्रक्चर में आता है तो हम उसको कॉमन नेम नहीं दे सकते. अब जिसका कोई नेम नहीं होगा कॉमन नेम में उसका ही आईयूपीएसी सिस्टमैटिक रूल से हम करेंगे. तो अगेन आईयूपीएसी के लिए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 6.
8, 6. 6. Longest chain सीधा straight chain होगा and that will be of 6 carbon. पेरेंट कौन सा हो गया? Hexane. हेक्सेन. अब 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है और तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, क्या नाम? Methyl. ट्राइमिथाइल हो जाएगा. Yes, sir. ठीक है, 3 मिथाइल है तो ट्राइमिथाइल. अब नंबरिंग कहाँ से करें? Right to left. Right to left. क्यों? तो दोनों में सेम होगा ना. एग्जैक्टली दोनों में सेम होगा क्योंकि लेफ्ट से करोगे तो 3 और 4 पे ब्रांच दिख रहा है और राइट से करोगे तो भी 3 और 4 में दिख रहा है. बट फिर भी द करेक्ट नंबरिंग इज फ्रॉम द राइट. बट व्हाई? क्योंकि लेफ्ट से जब हम the नंबर methyl group. करते हैं, हाँ, लेफ्ट से जब नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पे एक मिथाइल है लेकिन फोर्थ पे 2 है, तो इसका नंबर एक्चुअली आएगा 3, 4, 4. वर्सेस अगर मैं राइट से करूं तो 1, 2, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. तो अब 2 मिथाइल कहाँ पर है? 3, यानी नंबर क्या आएगा? 3, 3, 3 4. और 4. अब ऐसे केस में जब दोनों तरफ से नंबर सेम आते हैं ना, तो हम देखते हैं सम ऑफ द लोकेंट्स. सम यानी टोटल ऐड करके इसका सम कितना हो रहा है 11, वर्सेस इसका कितना हो रहा है. 10. 10. तो लोवेस्ट कौन सा है? 10. इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया. तो अब एक नया रूल हमने समझा कि अगर नंबर्स दोनों तरफ से सेम आते हैं तो लोवेस्ट नंबरिंग रूल को अप्लाई करके नंबर इट फ्रॉम दैट साइड द सम ऑफ द लोकेंट्स इज मिनिमम. ये क्लियर है? Yes, sir. तो अब तीनों बच्चों का नाम 3, 3, 4 ट्राइमिथाइल हो जाएगा एंड पेरेंट का नाम Hexane. हेक्सेन. Hexane. तो ये हो गया IUPAC नेम. नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 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 CH पे CH3 और यहाँ पे CH2 CH3. अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 6. 6. वो जो Seven. CH3 से लेके नीचे वाले Seven. CH3 तक जो 7. 7 अब द आंसर इज नॉट 6 बट इट्स 7. हम क्या करते हैं, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को स्ट्रेट चेन बोलते हैं. पहले 3 एग्जांपल डेलिबरेटली मैंने स्ट्रेट चेन वाला पेरेंट चेन बनता है वैसे दिया. लेकिन अब यहाँ पर व्हेन यू गो टू काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप आगे 6 भी जा सकते हो और 5 से नीचे 6 और 7 तक भी जा सकते हो. तो हम क्या बोलते हैं, वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, राइट? Yes, sir. अब लॉन्गेस्ट में एक और वर्ड डाल देते हैं, कंटिन्यूअस चेन. बस कैच इतना है कि वो कंटिन्यूअस कार्बन का चेन होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? So अगर that आप straight होना जरूरी नहीं है. क्या It's not necessary that it is in one straight line. ना, वही तो कैच है. लॉन्गेस्ट इज नॉट द स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट कैन बी एनी चेन. बस खाली कंडीशन है कि इट शुड बी ऑफ मैक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो अगर आपके पास 6 और 7 का पॉसिबिलिटी है तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? 7. तो फोर्थ एग्जांपल से हमने एक और रूल को मॉडिफाई किया कि लॉन्गेस्ट हमेशा स्ट्रेट नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और मैक्स कार्बन होना चाहिए, तभी तो लॉन्गेस्ट बोलेंगे ना. अब नंबरिंग लेफ्ट से करो या बॉटम से? Right से. Bottom से. राइट बॉटम से, क्योंकि अब यहाँ पे मिथाइल नजदीक है ना, थर्ड कार्बन पे आ जाएगा. तो अब करेक्ट नंबरिंग हो गया 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7. अब क्लब करो, व्हाट्स द IUPAC नेम? 3-methyl heptane. Methyl heptane. 3-methyl heptane. Understood the name?
नेक्स्ट CH3 CH2 CH पे मिथाइल, CH पे मिथाइल, CH पे CH2 CH2 CH3, CH पे मिथाइल और CH2 CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन। 8 8 8 8 8 सर 8 दो जगह से आ रहा है। हाँ 8 तो है करेक्ट, बट एक ही 8 कार्बन का चेन नहीं है, 2 8 कार्बन का चेन है। एक तो स्ट्रेट दिख रहा है आपको 8 का, और एक कंटिन्यूस। और एक एल शेप दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। yes sir अब यहाँ पर व्हेन यू हैव मल्टीपल लॉन्गेस्ट चेन, मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन होता है, तो फिर कौन सा सिलेक्ट करे, ये क्वेश्चन है। रूल ये है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट चेन which has max number of substituent, जिनमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हो, which has maximum number of substituents। वापस रूल बोलता हूं कि अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तो फिर वो चेन सेलेक्ट करना है जहां पे सबसे ज्यादा सब्सटीट्यूएंट्स है। अब लेट मी सेलेक्ट द स्ट्रेट चेन which was 8 कार्बन का चेन। कितने सब्सटीट्यूएंट्स इस पर्टिकुलर चेन में आ रहे हैं? 4 4 1 2 3, ये पूरा एक बच्चा है, एक सब्सटीट्यूएंट है, बड़ा बच्चा है ये 3 कार्बन का, लेकिन एक सिंगल सब्सटीट्यूएंट है, तो टोटल 4 दिख रहे हैं सबको। yes sir अब अगर मैं ये एल शेप वाला सिलेक्ट करूं लाइक दिस, 3 कितने दिख रहे हैं? 3 ये पूरा एक सब्सटीट्यूएंट होगा, yes sir ये दूसरा, ये तीसरा, तो कौन सा चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेट वाला या एल straight one शेप? स्ट्रेट Straight वन। chain. Because that Straight, had max straight. number of bachas, meaning max number of branches, max number of substituents. Am I clear on that? yes sir दूसरा एक और सिंपल टेक्निक बताता हूँ आपको ब्रांच आइडेंटिफाई करने का। CH3 वाला जो कार्बन होता है, क्या उस पे कभी कोई ब्रांच होता है? नहीं। नहीं, क्योंकि वो टर्मिनल कार्बन होता है। CH2 वाले कार्बन पे कभी ब्रांच ब्रांच है? नहीं। नहीं। अब देखो ब्रांच कहां पर था, CH पे था और यहाँ पे C पे था। शॉर्टकट ये है कि आप खाली CH और C वाले कार्बन को चेक करो। क्या चेक करो? CH और C वाले। अगर CH वाले कार्बन दिखे तो एक ब्रांच बोलना है, और C वाला दिखा तो 2 ब्रांच बोलना है। सही है? इज अ शॉर्टकट ट्रिक क्लियर? सर कैन यू बोलो। रिपीट? CH वाला कार्बन दिखा ना, CH, तो एक ब्रांच उस पे दिखेगा, दिख रहा है एक ब्रांच। यस। और C वाला कार्बन अगर दिखा तो उस पे 2 ब्रांच होंगे, जैसे यहाँ पर है, दिख रहा है? ये C वाला यस। कार्बन दिख रहा है? मैंने ट्रिक क्या बोला? CH वाला कार्बन विल हैव 1 ब्रांच एंड C वाले कार्बन पे 2 ब्रांच। 2 ब्रांच। तो अब अगर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करते हैं तो CH3 पे कोई ब्रांच है? नहीं। CH2 पे? no नो। CH पे yes sir यस। एक ब्रांच, दूसरा CH, take फिर that यस। फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, नथिंग नथिंग, तो 4 मिला यहाँ पर मिक्स है। यस। बोलो। यस यस सर। अब अगर एल शेप में जाओ, CH3 CH2 CH 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 CH2 CH2 CH3, कितने CH आए एल में? 3। तो 3 ब्रांच हो गए। मुझे वो एल शेप मार्क करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक समझाए तो। yes sir
अब मल्टीपल लॉन्गेस्ट चेन होता है, you select that chain which has maximum number of substituent, which in this case will be the straight chain of how many branches? Eight. How many branches? Four, Four four. branches. 4. Four. ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। नन्हे मुन्ने बच्चे है, उसका तो नाम पता है। ये बड़े बच्चे का नाम क्या होगा? Propyl. Propyl. यस। स्पेसिफिकली ये तीनों कार्बन एक ही चेन, स्ट्रेट चेन में है, इसको हम एन प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? N-propyl. N एन propyl. प्रोपाइल। और 3 मिथाइल को क्लब करेंगे तो Trimethyl. Dimethyl. ट्राइमिथाइल। अब इस एग्जांपल में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब पहले जितने भी एग्जांपल है मेरे सारे सब्स्टिट्यूएंट खाली मिथाइल थे, बट इस सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल वाला भी है और Propyl भी है। ठीक है। तो इस केस में यू हैव टू अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अ करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर दो अलग अलग बच्चे हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना जरूरी है। मतलब अगर एक इथाइल है और एक मिथाइल है तो पहले किसको लिखोगे? Ethyl. Ethyl. इथाइल का ई, मिथाइल के एम से पहले आता है। अब Yes, इसमें sir. कुछ ट्रिक्स है या रूल्स है। एन सेक टर्ट, ये वाला जो प्रीफिक्स है, उसके अलावा डाई और ट्राई, अगर नाम में ये सब है उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। रिपीट, नहीं करते हैं। बट आइजो या नियो अगर किसी नाम में है तो वी कंसिडर देम। I'll tell you the example of this, but just remember this alphabetical order rule. N sec third ditri not considered, iso and neo considered. तो इस केस में दो बच्चे हैं, एक एन प्रोपाइल वाला बच्चा है और एक ट्राई मिथाइल क्लब करके वाला बच्चा है ना, दो डिफरेंट Yes. टाइप है। अब लेट मी कंप्लीट। मुझे बताओ, एन प्रोपाइल में मैंने बोला एन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करना, तो अब कौन सा पहला अल्फाबेट लोगे? P. तो एन प्रोपाइल में पी लेना है। और ट्राई मिथाइल में भी ट्राई को कंसिडर नहीं करना है, तो किसको लोगे? M. बस दिस इज व्हाट आई मीन बाय करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझा? Yes, sir. अब एम और पी में पहले कौन? M. यानी ट्राई मिथाइल एज अ होल पहले लिखना पड़ेगा और एन प्रोपाइल एज अ होल बाद में लिखना पड़ेगा। समझा ये ऑर्डर? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा रूल है नंबरिंग का। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करूं, लेफ्ट से या राइट से? From the right, sir. Why? Sir, there is a propyl group which is bigger than methyl, so means it should get the lower number. ऐसा तो कोई रूल मैंने बताया नहीं। Total Assumption. number of carbon atoms if you will get the lower number if you do it from the right. अभी तक जो रूल मैंने बताया उस रूल के हिसाब से बैठ रहा है क्या? लेफ्ट से नंबर क्या क्या आ रहे हैं? तो सेम ही होएगा। 2 3 4 5 आ रहा है दोनों तरफ से। हाँ और दोनों तरफ से जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हर एक कार्बन पे एक एक है, तो ये सम ऑफ द लोकल्स का रूल यहाँ पे वैलिड होगा या नहीं? नहीं होएगा। नहीं होएगा। प्रॉब्लम समझा? यस तो हर रूल में, हर एग्जाम्पल में मैं एक रूल को ऐड कर रहा हूं। मैंने आपको पहले लिस्ट ऑफ द रूल्स नहीं बताया, वो लिस्ट अपने आप बनते जाएगा एज आई प्रोग्रेस विद द एग्जाम्पल्स। सर आप एक और बार समझा सकते हो? हाँ, तो जो रूल्स मैंने अब तक बताए उसमें लॉन्गेस्ट चेन क्लियर है, Yes, जो sir. सब्स्टिट्यूएंट्स क्लियर है, हम्म ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन है वो पेरेंट चेन है, जो सर्कल ग्रुप्स है या डार्क लाइन से मैंने किया है वो सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट और चाइल्ड समझ गया? हाँ
अगर चाइल्ड सेम है तो डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल लिख सकते हैं, बट अगर चाइल्ड अलग अलग है देन यू हैव टू थिंक ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उस ऑर्डर में मैंने आपको बोला कि एन सेक्टर डाइट्राई को इग्नोर करना है, लेकिन आइसो और नियो आपको कंसिडर करना है। मैंने क्या बोला कि एन प्रोपाइल का कौन सा अल्फाबेट उठाओगे? P, पी। और ट्राइमिथाइल का? M, एम। तो अब मैंने बात की नंबरिंग के ऊपर। नंबरिंग के लिए अब जब दोनों तरफ से सेम नंबर आता है और सम ऑफ द लोकेंट्स भी सेम हो, तो वो ग्रुप जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको नंबर भी लोएस्ट मिलना पहले चाहिए, पहले और नंबर लोएस्ट मिलना चाहिए। तो ट्राइमिथाइल को अगर लेफ्ट से करूं तो क्या क्या नंबर मिल रहा है बताओ? 3, 4 और 5, 4 और करेक्ट, 5. 3, 4, 5। 6, लेकिन राइट में अगर राइट से करूं क्या क्या मिल रहा है? 3, 4 3. और 6, 3, 5 होगा ना ये? 4, देखो मैं दोनों तरफ से नंबरिंग करके बताता हूँ। ये नंबर नंबर समझते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने पूछा मिथाइल जो पहले अल्फाबेट में आने वाला है उसके नंबर क्या क्या है। प्रोफाइल की बात नहीं की मैंने, खाली मिथाइल का नंबर चेक कर क्या है। 3, 4 और 4 and 6, 6. 3, 4, 6। यू अग्री? वर्सेस अगर राइट से करूँ तो क्या आ रहा है? 3, 6 और 7, हे भगवान। 3, 5 and 1, 6. 2, 6, 3, 7 and 4, 5. 5। 8 कार्बन में भी नंबर में इतना गफला करते हो रे तुम लोग। खाली मिथाइल का नंबर कितना है 3, 5 and 6. समझता है ये एवरीवन? Yes, sir. अब इन दोनों में लोवेस्ट कौन सा? 3, 4, 6. 3, So 4. that is correct and this will be ruled out. समझ में आ गया? हम्म, तो अब ये रूल को क्लब करके आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। प्राइम मिथाइल और एन प्रोपाइल में पहले किसको लिखना है? Trimethyl. Trimethyl. और उसके नंबर क्या है? 3, 4, 2, 6. 3, 3, 4, 6. तो 3, 4, 6 ट्राइमिथाइल। उसके बाद दूसरे बच्चे का नाम, दूसरे बच्चे का लोकेशन क्या है? 5. 5. 5, 5N प्रोपाइल। Sir, और पेरेंट का नाम, पेरेंट का नाम octane. 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 दैट्स योर कंप्लीट नेम। हाँ अब कुछ डाउट है तो पूछो। Yes, sir. I have a doubt. बोल। सर आप इसको N प्रोफाइल क्यों लिखते हो, सिर्फ प्रोफाइल क्यों नहीं? मैं आगे बताऊंगा अभी, नेक्स्ट स्लाइड उसी के ऊपर है। ओके सर. ओके तो अब ये जो क्वेश्चन आया आरव का वैलिड क्वेश्चन है कि एन प्रोफाइल क्यों लिखा, सिर्फ प्रोफाइल क्यों नहीं। नाउ वी कम टू द अल्काइल ग्रुप्स। यू नो अबाउट अल्काइल ग्रुप्स। मिथाइल एक अल्काइल है, इथाइल एक अल्काइल है, प्रोपाइल एक अल्काइल है, राइट? यस सर. Yes. अल्काइल ग्रुप्स डिराइव कैसे होते हैं? This one H from alkanes. सुपर सिंपल डेफिनेशन। अल्केन में से 1 हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो आई गेट एन अल्काइल। यस सर. एंड हाइड्रोजन निकालने के बाद एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी। हाइड्रोजन Yes. एक निकालोगे तो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी आएगी कि नहीं? यस सर. तो उसी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी को आज के बाद यू आर गोइंग टू से रैडिकल। क्या बोलोगे? Radical. Radical. So alkyl groups are basically the alkyl radicals only because of one unsatisfied unshared valency. Correct? So methyl CH3 and ethyl CH3 CH2 जिसको क्लब करके आप C2H5 भी लिख सकते हो। ये अपने सबसे सिंपलेस्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट है। मीथेन से डिराइव हुआ मिथाइल, इथेन से डिराइव हुआ इथाइल।
एंड इनको हम शॉर्ट एब्रीविएशन भी देते हैं, विच इज फर्स्ट 2 लेटर ऑफ देयर नेम्स। यानी मिथाइल को मी, इथाइल को ईटी, प्रोपाइल को फर्स्ट 2 PR. लेटर्स पी आर, और ब्यूटाइल BU. पीयू, पेंटाइल PE. पीई। अब हेक्सेन, हेक्साइल और हेप्टाइल में HE कॉमन आ रहा है, Hmm. तो उस केस में वी ऑल्सो एड द थर्ड लेटर, यानी हेक्स आइल के लिए हेक्स लेंगे, हेप्टाइल के लिए हेप लेंगे, HEP. HEP। समझा? सॉरी। Yes. नाउ इथाइल के बाद वी आर गोइंग टू हैव अ प्रोपाइल ग्रुप। और जब 3 कार्बन अपने पास है तो जो रेडिकल है वो 2 जगह पे आ सकता है, ईदर ऑन द लास्ट कार्बन और ऑन द मिडल कार्बन। मिथाइल और इथाइल में एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 1 और 2 कार्बन में एक से ज्यादा रेडिकल्स हो ही नहीं सकते। बट 3 कार्बन में मैं रेडिकल या तो एंड पे रख सकता हूं या तो मिडल पे रख सकता हूं। अरे यस और नो? Yes. अब सेटिस्फाई द वैलेंसी, ये जो बनाया मैंने स्केलेटन बनाया, अब बॉडी बनाओ, बनाओ इधर। CH3, हम्म CH2, हम्म CH2. तो करेक्ट। और एक अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रेडिकल दिख रहा है, और दूसरे Yes. में सेटिस्फाई करो। CH3, CH3, CH3. क्या ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है? हाँ सेम No, है? नहीं नहीं. Definitely not। यहाँ पे रेडिकल CH2 पे दिख रहा है, यहाँ पे रेडिकल CH पे दिख रहा है, सेम कैसा है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। हाँ, तो आइसोमर्स है, और आइसोमर्स होते हैं इसका मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अलग है, और दिख रहा है डिफरेंट। अरे क्लियर? Yes. अब इसका पेरेंट कौन है दोनों का? कौन से अल्केन से डिराइव किया इसको? Propane. प्रोपेन। तो दोनों का नाम क्या होगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल। बट क्या मैं दोनों को प्रोपाइल प्रोपाइल बुलाऊं क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से प्रोपाइल की बात कर रहे हैं। मुझे दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ No. इट्स लाइक अगर एक मदर को ट्विंस पैदा हो रहे हैं तो दोनों ट्विंस को सेम नाम देते हैं क्या? तो दे आर बोर्न एट द सेम टाइम। एक को राम, दूसरे को श्याम। श्याम बोलना पड़ेगा। एक को सीता, दूसरे को गीता बोलना पड़ेगा कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब क्योंकि इसका पेरेंट प्रोपेन है लेकिन ये ट्विंस है, ट्विंस है मतलब आइसोमर्स है, स्ट्रक्चर अलग है तो उन आइसोमर को अलग नाम भी देना पड़ेगा। क्योंकि रिवर्स सोचो कि अगर मैं आपको बोलूं प्रोपाइल, तो अभी आप मुझे क्वेश्चन करोगे सर कौन सा प्रोपाइल, जिसमें रेडिकल CH2 पे है या रेडिकल CH पे है? तो नाम से हमें डिफरेंशिएट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रीफिक्सेस, जहां पर पहला प्रोपाइल all carbon with a straight chain of carbon N. is called N. Hence we have to write N propyl for this chain. And दूसरा, इसमें ये रेडिकल सेकेंडरी कार्बन पे है। Iso. सेकेंडरी कार्बन मतलब वो कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच्ड है। सेकेंडरी मतलब अ कार्बन अटैच टू 2 कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं सेक प्रोपाइल। बट स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसो प्रोपाइल। अब उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल इसको सेक प्रोपाइल बोलते हैं बिकॉज ऑफ द रेडिकल एट सेकेंडरी कार्बन। क्लियर है यहां तक? बोलो। Yes, sir. Yes. अब ध्यान देना, ब्यूटेन में
कितने आइसोमर्स थे? Two. How many ways the Two. butane was drawn? Two. Two. One was called. N-butane. N-butane. Niazole. ठीक है, अब एन ब्यूटेन का कार्बन का स्केलेटन बना देता है। अब मुझे बताओ इसमें रेडिकल कहाँ कहाँ आ सकता है, या हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? Two रेडिकल possible. मतलब Two. करेक्ट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। मतलब फर्स्ट पे लो या लास्ट पे एक स्ट्रक्चर आएगा, और सेकंड पे करो या थर्ड पे दूसरा स्ट्रक्चर आएगा। अरे एम आई क्लियर? Yes. आई रिपीट, 4 कार्बन के चेन में रेडिकल कहाँ कहाँ आ सकता है? आंसर है या तो एंड में रखो या तो सेकंड कार्बन पे रखो। अब सेकंड इधर से बोलो या इधर से बोलो, क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर हैज अ सिमेट्री। स्केलेटन समझा? Yes. अब ये स्केलेटन को बॉडी बनाओ। सेटिस्फाई द वैलेंसी, लेफ्ट टू राइट एवरीवन। CH3. हम्म, CH2. CH2. CH2 CH2. सुपर, नेक्स्ट। CH3. CH2 CH2. हाँ एच ही आएगा ना, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 4 में से एक एच आएगा, और लास्ट में CH3। अब दोनों का पेरेंट है ब्यूटेन, तो नाम में ब्यूटाइल तो आएगा, लेकिन क्या अगेन दोनों को ब्यूटाइल बोल सकता हूँ? नहीं. नहीं एक को संता दूसरे को बनता, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ तो पहले वाले का नाम क्या दोगे, बोलो? N-butyl. नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, और दूसरा वाला आइसो नहीं, आइसो नहीं, क्योंकि रेडिकल कहाँ पर है? सेकेंडरी कार्बन, तो ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। समझा? सर, तो रेडिकल्स के लिए सेक और जो कंपाउंड के लिए आइसो। ये कंपाउंड आइसो है ही नहीं ना, आइसो होने के लिए ब्रांच होना चाहिए, ये ब्रांच है ही नहीं। अभी दूसरा नहीं, वेरिएशन बता रहा हूँ, सुन जो पहले, लेट मी कंप्लीट, तेरा डाउट्स क्लियर ब्यूटेन होगा। का अरे है। आ रहा लेट मी कंप्लीट, हाँ एक और 5 मिनट दे दे मुझे। अब ये मैंने एन ब्यूटेन से 2 रेडिकल स्ट्रक्चर्स बनाए। अब दूसरा आइसोमर क्या था ब्यूटेन का? Isobutane. तो उसमें मेरा स्केलेटन ऐसा था, 3 स्टेट 1 ब्रांच। Yes. अब सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, रेडिकल कितने कार्बन पे लगा सकते? एक. 3 ओके, 1 3, और कोई आंसर? 2. 2, 1 2 और 3। द आंसर इज 2, बिकॉज ये जो 3 कार्बन है कंडेंस फॉर्म में मैंने बोला था, दे आर ऑल बॉन्डेड टू द, Same. Same part. तो रेडिकल में इधर लगाओ या इधर लगाओ, सेम कार्बन पे है तो मुझे एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा उसका। अरे यस और नो? Yes. yes sir तो एक रेडिकल मैं यहां लगा देता हूं, विच इज सेम एज रेडिकल हियर और ऑन द लेफ्ट साइड, अंडरस्टूड? Yes, sir. और दूसरे में रेडिकल मैं बीच वाले कार्बन पे लगाता हूं, तो ये रेडिकल यहां पर, ये समझा? रेडिकल इधर या इधर लगा सकता हूं, 2 पॉसिबिलिटी और आ गई। yes Yes. चलो बॉडी बनाने में हेल्प करो, पहला वाला। CH3. हम्म, CH. CH2. CH2, वेरी गुड, और CH3. गुड। यहाँ पे CH3. फिर No H. नो एच, वेरी गुड। CH3. CH3. रेडिकल का फंडा क्लियर है आपको? Yes. यस, कि जो अल्केन का स्केलेटन था उसमें से H निकालने पर रेडिकल आता है,
तो मैंने स्केलेटन बनाया, आपसे पूछा रेडिकल कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो एन ब्यूटेन से 2 स्ट्रक्चर आए और आइसोब्यूटेन से 4 स्ट्रक्चर आए। यहां तक का कहानी क्लियर है? अरे बोलो। Yes. Yes, Yes. sir. अब ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इट इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी कार्बन? 3. 3। तो जैसे 2 कार्बन को कनेक्ट करने वाला रेडिकल को सेकेंडरी बोला, तो 3 वाले को क्या बोलेंगे? Tertiary. टर्शियरी। टर्शियरी, ट्राई नहीं, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पढ़ा है ऐसा कहीं? Yes. Food chain. तो टर्शियरी वाला रेडिकल जब आता है तो उसके लिए शॉर्ट नेम है टर्ट, और इसका पेरेंट तो ब्यूटेन था तो नाम ब्यूटाइल हो गया। असगर, टर्ट ब्यूटाइल, समझा ये नाम? Yes. और ये वाला रेडिकल का नाम क्या होगा? विल इट बी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? Primary. Because it is attached with only one carbon. अरे क्लियर? Yes. अब यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर में देयर इज अ मिथाइल ब्रांच्ड ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ द स्टेट चेन, ऐसा ग्रुप दिख रहा है। बताओ ये ग्रुप कौन से वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा था? The butane octet, I think so. ऐसा वाला ग्रुप हमने कहाँ पर देखा था? ये ग्रुप है ना, कहाँ देखा था? ISO. देखा था कि नहीं? सारे आइसो में ये स्ट्रक्चर कॉमन होगा। हमने कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा था, तभी भी बोला था कि कोई भी आइसो स्ट्रक्चर हो इट मस्ट हैव अ CH3CH वाला ग्रुप। दैट्स एक्चुअली योर ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी आइसो स्ट्रक्चर। डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. Yes. सिमिलरली CH3C पे 2 मिथाइल ब्रांच होता है सेकेंड कार्बन पे, तो ये हर न्यू में दिखता है, ये न्यू की पहचान है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाला स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा है? ISO. हेंस इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एन, सेक, आइसो और टर्ट। और हर स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है कि नहीं? हाँ। ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं, उसके बाद जितने डाउट्स होंगे आप पूछ लो मुझे। तो लेट मी हैव अ स्ट्रक्चर विद CH3C, CH3 and CH3 and then a CH2 radical। बताओ इसका नाम क्या होगा? Neobutyl. Neopentyl. Neo. ब्यूटाइल क्यों होगा? टोटल कार्बन कितने हैं? अरे टोटल कार्बन कितने हैं? 5. 5. तो नियो ब्यूटाइल जैसा कुछ तो होता ही नहीं ना, इट शुड बी नेम नियोपेंटाइल। और नियो होने का रीजन क्या है? नियो की पहचान दिख रही है क्या? Yes. दिस इज नियो का पहचान, दिस इज आइसो का पहचान, एज सिंपल एज दैट। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब तुम लोग ने स्कूल्स में जो सेक प्रोफाइल है उसको आइसो प्रोफाइल बोला होगा। अब उसका रीजन आपके सामने। अगर मैं ये रेडिकल को ऊपर लेकर मिथाइल को नीचे ले लूं तो ये स्ट्रक्चर बनता है। अरे क्लियर, सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं? दे आर सेम इक्वल स्ट्रक्चर्स, राइट? हाँ. बट ये वाला जो अपीयरेंस है वो किसका है? Iso. इसीलिए यहां पर इस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया? आइसो प्रोफाइल। ये है सेकेंडरी वाला रेडिकल
लेकिन क्योंकि इसका आइजो का पहचान है, इसीलिए इसको आइसोप्रोपाइल बोला गया था, जो हर आइसो वाले स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा, इसीलिए आइसोप्रोपाइल। So that sums up very important part of alkyl groups. हाँ रव, अभी कोई डाउट है तुझे? नहीं सर। नो सर, नो सर, समझा। सेक ब्यूटाइल को भी हम आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? अगर मैं इसको ऑल्टरनेट ऐसा लिखूं, मिथाइल को नीचे लाकर, क्या तेरे को कोई आइसो वाला अपीयरेंस दिख रहा है? ऐसा अपीयरेंस नहीं दिख रहा है? नहीं अपीयरेंस मतलब CH3 CH CH3 होना ही चाहिए, दैट्स मैंडेटरी कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, इसीलिए इसको आइसोब्यूटाइल नहीं बोल सकते। तो मुझे बताओ कितने प्रीफिक्सेस हमने यूज किए अल्काइल को नेम करने के लिए? एन सेक आइसो टर्ट और बस न्यू। और ये किया ना ऊपर, तो कितने हो गए? अरे कितने हो गए? 5। 5. अब मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो ये सारे नाम लिख दिए थे पहले ही, एन, सेक, टर्ट, डाई, ट्राई, आइसो, नियो। डाई ट्राई तो खैर 2 मिथाइल हो या 3 मिथाइल हो तब यूज करना है, बट एन, सेक, टर्ट, आइसो, नियो आपको अल्काइल के जो आइसोमर्स है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करना है। उसमें खाली आइसो और नियो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, बाकी को इग्नोर करना है। समझा? Yes. अब अगर ये समझा तो आगे का एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH CH methyl methyl, then a CH CH methyl CH2 CH3 ethyl, then a CH2 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 and CH3। ठीक है, तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो इसको हमें IUPAC नेम करना है। पहला रूल, फर्स्ट रूल, बोलो। लॉन्गेस्ट चेन। Longest chain. बताओ कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा? 10। एवरीवन ऑन द सेम पेज? 10 का बनेगा। हाँ. ओके, दूसरा, डेकेन आपका पेरेंट बन गया तो सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 2। 2. जो, और उसका ट्रिक मैंने क्या बताया था? CH कितने CH दिख रहे हैं? 1. 2। 2. 2 दिख रहे हैं, इसलिए तो 2 ब्रांच बोला। एक पेरेंट है, 2 बच्चे हैं, ये फैमिली क्लियर हुई? अब ये जो बच्चा है ये कॉम्प्लेक्स बच्चा है। कॉम्प्लेक्स बच्चा मतलब ऐसा बच्चा जिसको हम सिर्फ प्रोपाइल या अल्काइल के नाम से इंडिकेट नहीं कर सकते, आपको उसके प्रीफिक्स को भी आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब ट्विन्स वाला केस जब भी अल्काइल में आता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट समझा? मिथाइल और इथाइल एक एक सिंगल बच्चे है, तो सिंगल बच्चा मतलब सिंपल वाला बच्चा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। बट एक से ज्यादा बच्चे अगर घर में है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रूल, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर यहां तक? अरे एवरीवन, इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. इसमें पेरेंट का नाम क्या आ गया पहले वो बोलो। चलो पेरेंट का नाम डेकेन। डेकेन, ठीक है, पेरेंट ओके। अब बच्चे में ये कितने कार्बन का बच्चा है? 3।
3 मतलब प्रोपाइल तो फिक्स है, Yes. आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल में ये आइसो प्रोपाइल है क्योंकि आइसो का अपीयरेंस दिख रहा है, Yes. इसलिए आइसो प्रोपाइल नाम हो गया। और ऊपर कितने कार्बन है? 4. So, तो ब्यूटाइल वाला बच्चा है, बट ब्यूटाइल में कौन सा ब्यूटाइल है? उसके लिए ना ये पेरेंट और चाइल्ड को कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड है, एक्चुअली अम्बिलिकल कॉर्ड है ये। जब बर्थ होता है तो बच्चा इज कनेक्टेड टू द मदर बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट? दिस इज द सेम अम्बिलिकल कॉर्ड हियर व्हिच इज कनेक्टिंग द पेरेंट टू द चाइल्ड। तो अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के कौन से कार्बन पे अटैच्ड है वो चेक कर। बच्चे सेकंड के CH पे कनेक्टेड है, और CH को मैंने क्या बोला था? सेक सेक। इसीलिए इस बच्चे का नाम सिंपल तरीके से क्या आ गया? सेक ब्यूटाइल। Sec butyl. Sec butyl. समझा? Yes. पेरेंट क्लियर है, बच्चा क्लियर है। अब बच्चे की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो लेफ्ट से या राइट से, विच विल बी द करेक्ट नंबरिंग? Left. Left. बिकॉज लोवेस्ट नंबर रूल लेफ्ट से अप्लाई हो रहा है। तो 6, 7, 8, 9, 10 करेक्ट। अब इस पेरेंट को 2 बच्चे हैं, तो नेम करने में अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे, yes. और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने क्या बोला था? आइसो पहले आएगा। इंक्लूड होता है। इंक्लूड होता है, तो आइसो का आई सिलेक्ट करोगे, हाँ, और और ब्यूटाइल सेक का बी। ब्यूटाइल का बी। B. B. अब अल्फाबेट में पहले कौन? B. ब्यूटेन ब्यूटाइल। बी फॉर ब्यूटाइल। देखो A to Z आना चाहिए, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। ओके, आता है ना सबको? देखो इसमें भी डाउट है। तो हाँ 5 सर। पे सेक ब्यूटाइल है, 4 पे आइसो प्रोपाइल है, दोनों बच्चों के नाम आ गए, और पेरेंट का नाम है डेकेन। Child followed by parent is the IUPAC. If bachas are more than one, you have to identify the correct alphabetical order. That is the simple name of the compound. अरे बोलो क्लियर। Yes, sir. सर अगर सबसे बॉटम वाला CH3 को साइड पे शिफ्ट किया तो वो फिर सेक प्रोपाइल हो जाएगा। नहीं, बॉटम वाला CH3 को यहाँ पे शिफ्ट किया, ऐसा बोल रहा है ना? हाँ। क्या फर्क पड़ा? इसको तू अगर नीचे CH से लिख, हैव आई चेंज माय कार्बन का चेन? नहीं। नहीं, ये सेम ही है दोनों, और इसीलिए हाँ। तो मैंने यहाँ पर ऐसे बता के बाद में इसको इक्वल टू लिखा था ना, इक्वल टू। अच्छा। हाँ। सेक प्रोफाइल भी करेक्ट है, लेकिन हम सेक को यूज नहीं करते क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो किसके जैसा है। आइसो। That's why the most commonly used name for propyl will be isopropyl, not sec propyl. Though sec propyl is correct. ओके। Okay, तो sec propyl लिखा होता ना तो भी चलता, लेकिन उस केस में P आ जाता अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बस। लेकिन अगर देखो सेक और आइसोप्रोपाइल में करेक्ट नेम या मोस्ट कॉमनली यूज नेम की बात करनी है तो कौन सा है? आइसो। आइसो। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज आइसोप्रोपाइल। तो बैक ऑफ द माइंड याद रखने का, आइसोप्रोपाइल ही सेक प्रोपाइल है, लेकिन लिखने के लिए आइसोप्रोपाइल हम लिखेंगे। समझा? Yes. ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में भी IUPAC नेम हो सकता है। बहुत लोगों के दिमाग में शायद ये डाउट आया कि सर ये तो हम IUPAC कर रहे हैं, तो इसमें सेक और आइसो कैसे यूज कर सकते हैं? वो तो हमारे कॉमन नेम के प्रीफिक्स हैं। तो अगर डाउट आया है तो जेन्युइन डाउट है और करेक्ट है, बट द रूल इज वी कैन यूज दीज कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप्स का नेम इन द IUPAC, मतलब ये अलाउड है एज पर द IUPAC रूल्स। बट ऑन दी अदर हैंड इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के IUPAC नेम भी आप लिख सकते हो, और IUPAC करने के लिए इसके 2 रूल्स हैं। पहला लॉन्गेस्ट चेन रूल, जो हमारा अल्केन का भी सेम रूल था, और दूसरा लोएस्ट नंबरिंग रूल।
सर ये जो स्टेक और आइसो ये तो सिर्फ हम रेडिकल के लिए दे रहे तो ये अलाउड होगा ना? अलाउड है, यस। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आईयूपीएसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट चेन यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम रेडिकल, यानी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना उसको आपको ध्यान में रखना है, और लोवेस्ट नंबर भी वहीं से देना है। तो मैं समझाता हूं कि हाउ टू नेम दिस। तो मैं ये आइसोप्रोपाइल को डिटैच कर लेता हूं, बच्चे को पेरेंट से अलग किया मैंने, और ये मैंने सब्स्टिट्यूएंट अलग लिखा, ठीक है। इसका ये रेडिकल है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड ये है। बर्थ के बाद तो अम्बिलिकल कॉर्ड काटना पड़ता है कि नहीं? तो अब रेडिकल से लॉन्गेस्ट चेन इस केस में कितने कार्बन का होगा? 3। ये नहीं होगा, रेडिकल से लॉन्गेस्ट चेन, कंटिन्यूस चेन, तो 2। दो ही होगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो आपका पहला कार्बन होना चाहिए, रेडिकल वाला, क्योंकि उसको नंबर भी आप हमेशा 1 देने वाले हो। उस हिसाब से ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का हो गया? 2 का हुआ कि नहीं? अब ये 1 वाला कार्बन जो है उसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, क्या नाम है इसका? हेलो। मिथाइल। तो 1 पे मिथाइल है, तो जैसे हम लिखते थे पहले बच्चे का नाम 1 मिथाइल, उसके बाद अब इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन का हुआ? 2। 2, तो दैट इज इथाइल। इसीलिए जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है उसका आईयूपीएसी नेम है 1 मिथाइल इथाइल। सर अगर नीचे वाले को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो भी वही आएगा ना? यस, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क ऊपर वाले बच्चे में पड़ेगा। तो ऊपर वाला बच्चा जो रहे वो CH वाला रेडिकल CH3 और CH2 CH3 पे है। अब इस केस में रेडिकल से लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बन रहा है? 3। अब 3 समझा? अब फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि यहां से सिलेक्ट करेगा तो 2 आ रहा है और यहां से सिलेक्ट करेगा तो 3 आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा? 3 वाला। और इसमें नंबरिंग हमेशा रेडिकल से करना है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताओ इसका नाम क्या होगा? 1 मिथाइल, नहीं सेक ब्यूटाइल। सेगब्यूटाइल कॉमन नहीं मेरे, आईयूपीएसी नहीं पूछ रहा हूँ। 1 मिथाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल। हाँ 1 मिथाइल प्रोपाइल, इतना क्या टाइम? 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और 3 कार्बन का पेरेंट है तो प्रोपाइल। समझा? अब तुम लोग को अगर ये 2 रूल समझ में आता है, लेट मी जस्ट ऑल्सो आस्क यू द आईयूपीएसी ऑफ दीज ग्रुप्स जो हमने ड्रॉ किए। अब आइसोब्यूटाइल में रेडिकल से लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का बनेगा? 3। और नंबरिंग कहां से करेंगे? हाँ 3 ना। हाँ 3। नंबरिंग कहां से करेंगे? रेडिकल के बाद एंड वाले CH2 राइट टू लेफ्ट। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। समझा? अब बोलो नाम। 2 मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल। करेक्ट। अब किसी भी अल्काइल का आप आईयूपीएसी कर सकते हो। ये वाला टर्ड ब्यूटाइल देख, इसका रेडिकल से लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का? 1 हाँ, लॉन्गेस्ट चेन 2 एक कार्बन का कैसा 2 आएगा रे? 2 ये 1 2 1 2 1 2 कहीं से भी ले, 2 ही का चेन आएगा। नंबरिंग भी 1 और 2 करना है। अब 1 पे 2 मिथाइल है तो क्या लिखोगे? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। अरे किसी को डाउट इस पार्ट में? रेडिकल से लॉन्गेस्ट चेन, रेडिकल से नंबरिंग, रेडिकल से लॉन्गेस्ट चेन, रेडिकल से नंबरिंग, दैट्स द रूल. If you apply it for neopentyl, tell me how many carbon का longest chain? 3. Numbering will be done from left या right? Right. राइट। Right. And 2 पे 2 मिथाइल है तो नाम बोलो.
2,2 डाइमिथाइल dimethyl propyl. Two प्रोपाइल। dimethyl propyl. 2,2-dimethyl propyl. आ गए सबके IUPAC? Yes. सर नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए हमको नॉर्मल कॉमन नेम ही यूज करना है, नियोपेंटाइल। सॉरी, हाँ। मतलब जो कॉमन कंपाउंड है, अगर ये रेडिकल किसी कंपाउंड से जुड़ा होता तो नियो नियो ही यूज करना ना, ये नहीं यूज करना ना। हाँ मैं बताता हूँ। अभी अगर तो नियोपेंटाइल लिखता है तो भी करेक्ट है, या फिर वो जो दूसरा नाम मैंने बताया IUPAC वो लिखेगा तो भी करेक्ट। तो इस केस में आई हैव अनदर IUPAC नेम विच विल बी ऑफ कोर्स रिलेटेड विद द सेम कंपाउंड। तो अब इस पूरे सेक ब्यूटाइल की जगह व्हाट आई कैन रिप्लेस? 1-methyl 1 मिथाइल प्रोपाइल। Methyl पूरे propyl. आइसोप्रोपाइल की जगह 1-methyl ethyl. Methyl ethyl. अब ये दोनों अगर सब्स्टिट्यूएंट के नाम है तो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे करेंगे डिसाइड? First E ethyl. E और P से. सुपर। आपने डिक्शनरी अगर यूज किया होगा तो जब एक वर्ड में 3 लेटर मान लो सेम है और 6 लेटर वर्ड है तो चौथे लेटर से हम डिक्शनरी के ऑर्डर में जाएंगे कि नहीं? Yes. यस और नो? तो यहां पर भी मिथाइल मिथाइल तक तो कॉमन है, तो आप किससे सिलेक्ट करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर? E ई और पी से। तो अब इस केस में 4 के साथ 1 मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल का नेम, और 5th के साथ सेक ब्यूटाइल का 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब ये पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द फुल नेम ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट एंड फॉलोड बाय द पेरेंट नेम डेकेन। सर वो 5 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा 1 अरे से? मल्टीप्लाई नहीं होता है, मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री है। ठीक है, हम वेरिएबल्स नहीं कर रहे हैं। ये 5th कार्बन के ऊपर 1 मिथाइल प्रोपाइल का ग्रुप लगाएगा। बेसिकली वी आर अटैचिंग अ सेक ब्यूटाइल ओनली। दैट इज हाउ यू रीड। 4 पे आइसोप्रोपाइल है, 5 पे सेक ब्यूटाइल है, और डेकेन पेरेंट चेन है। समझा? हाँ सर। मतलब हम दोनों तरह से नेम कर सकते हैं, दोनों ही वैलिड नेम है, दोनों करेक्ट है। कोई डाउट इस एग्जाम्पल में? नहीं sir. आज का सेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इसमें लॉन्गेस्ट चेन भी क्लियर, सब्स्टिट्यूएंट भी क्लियर, लोवेस्ट नंबरिंग क्लियर, कॉम्प्लेक्स वाले सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम, उन्हीं का IUPAC नेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सब कुछ एक एग्जाम्पल में फ्यूज्ड है। एवरीथिंग इन वन एग्जाम्पल। Got it? Last example. We have talked about cyclic compound. What's the name of this? cyclohexane. Cyclohexane. And if I introduce a double bond, Cyclohexene. तो क्लोज चेन या एलिसाइक्लिक कंपाउंड में खाली एक फर्क है, हम पहले क्या लगाते हैं? Cyclo. साइक्लो, जो इंडिकेट कर रहा है कि 6 कार्बन क्लोज चेन में है, और उसके बाद हेक्स और इन। तो हेक्स 6 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। दैट्स हाउ वी विल बी नेमिंग द साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है? So till here we have completed the nomenclature of alkanes and the cyclic compound का एक एग्जाम्पल। ठीक है? अच्छा, इसी में लेट मी गिव जस्ट वन मोर एग्जाम्पल। अगर मेरे पास ये साइक्लिक रिंग के ऊपर एक मिथाइल और एक इथाइल है, अब समझता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? एक डॉट Yes. मतलब मिथाइल, 2 डॉट मतलब इथाइल, करेक्ट? हाँ सर। व्हाट इज द करेक्ट नंबरिंग इन दिस पर्टिकुलर साइक्लिक चेन? मिथाइल और इथाइल का नंबर क्या होगा? फिर इसमें 1 नंबरिंग नहीं कर सकते ethyl. क्योंकि साइक्लिक में किधर से भी चालू हो सकता है ना, तो करेक्ट जहाँ पे कनेक्टेड है उधर से ही चालू करना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि लोएस्ट नंबर वहीं पे 1 आएगा तेरा।
अब यहाँ पे अगर 1 आया तो इधर क्या आएगा? हाँ सॉरी 3। थ्री थ्री 3, मतलब नंबर 1 और 3 है। लेकिन अगर यहां से शुरू करो तो भी 1 3 हो रहा है, क्लॉकवाइज में जाओ तो भी 1 3, एंटी क्लॉकवाइज में जाओ तो भी 1 3। हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा करेक्ट नंबर है। अब लोकेंट्स का इथाइल सम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। करेक्ट, लोकेंट्स One का सम तो methyl 1 + 3 4 ही आ रहा है, तो इसमें सम का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें रूल ये बनता है कि अगर दो ग्रुप्स जो कि अलग है आर हैविंग द सेम लोकेंट्स या नंबर, you have to number in such a way that the group which comes first in the alphabetical order should also get the lowest number. मतलब अगर मिथाइल और इथाइल सेम पोजीशन पे है तो इथाइल को लोवेस्ट नंबर देना है और मिथाइल को हायर जाएगा। Hence the name will be 1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल। That's how you read it. पेरेंट का नाम है साइक्लो हेक्सेन। एक्सेन। समझा? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ सर। लास्ट एक और इसी के रिलेशन में है तो दे देता हूं। मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है, सिमिलर टू प्रीवियस, खाली 1 मिथाइल मैंने बढ़ा दिया। अब क्या 1 3 का पोजीशन सेम रहेगा? हाँ, हाँ। सेम 1 रहेगा नीचे। इथाइल और 3 डाई मिथाइल रहेगा। तो अब गलत हो गया ना, क्योंकि 3 पे 2 मिथाइल है तो 1 3 3 का नंबर आएगा। वर्सेस अगर तू ऊपर 1 और राइट में 3 करेगा तो 1 1 3 आएगा। तो इसमें सम ऑफ द हाँ लोकेंट्स का रूल वैलिड है कि नहीं? हाँ मतलब मोर द बच्चास, उनको लोवेस्ट नंबर मिलना इंपॉर्टेंट है। चाहिए। तो अगर 2 इथाइल होता तो फिर किसको मिलता? अगर एक ही कार्बन पे 2 इथाइल है, एक इधर और एक ऐसा, ठीक है, हम्म। और यहाँ पर भी एक इथाइल बोल रहा है कि मिथाइल रखूं? इधर 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। अब 1 1 3 3 पोजीशन तो सेम है, हाँ, तो किसको पहले करेगा 1? इथाइल फिर। क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आता है। अच्छा। तो पहले सम को देख, अगर सम सेम आ रहा है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख। समझा क्या बोला मैंने? हाँ सम अगर देखेंगे तो प्रीवियस में सम 1 और 3, 1 + 3 आ रहा था ना, तो sum was 1 + 3 which was 4 in both the cases, right? तो हाँ हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नेम किया। बट अगर सम में ही लोवेस्ट नंबर आ रहा है तेरा यहाँ पर, तो ये तो 7 गलत ही हो गया ना। तो इसको ही 1 देंगे और इसको 3 देंगे, और अब इसका नाम होगा 1 इथाइल, 3 3 डाइमिथाइल एंड नहीं सर, साइक्लोहेक्सेन। 1 नहीं 1 सर, उल्टा होगा। 1 इथाइल 1 डैश 1। सॉरी, 1 इथाइल 3 3। नहीं सर, अरे 3 सॉरी, इथाइल। मैंने नंबर ही गलत कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 1 है ये 3 है, मतलब 3 इथाइल, अल्फाबेट में तो पहले इथाइल ही आएगा, फिर 1 1 डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। समझा? हाँ सर। तो ये 9 एग्जाम्पल आपको अल्केन्स तक का नॉमेनक्लेचर पूरा क्लियर करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कीन्स, काइन्स और फिर हेटेरोएटम्स यानी फंक्शनल ग्रुप्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहां तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, practice them properly in your booklet. Write each and every example. I'll share the PPT with you all after the lecture is ended. So you are supposed to practice all the 9 examples on your own with understanding. And जो synopsis का IUPAC का पार्ट है, उसके रूल्स को एक बार गो थ्रू करो। जो मैंने बताए हैं उसका एक समरी ऑफ द रूल्स भी आप लिखते जाओ, ताकि एंड में जितने भी रूल्स हैं उसका एक प्रॉपरली समरी आपके पास रहेगा। ठीक है? हाँ बोलो।
सर CH3 का जो ग्रुप है उसको मिथाइल बुलाते हैं वो वाले को। तो CH2 वाले का कोई ग्रुप होता है क्या? मिथाइलिन, जो होमोलोगस सीरीज में बताया था। CH2 को मिथाइल, सॉरी CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH2 को मिथाइलिन, सिर्फ CH को मिथाइन बोलते हैं, मिथ आयनी, और सिर्फ C को क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। क्वाटरनरी? हाँ, क्वार्टर मतलब 4, सुना होगा ना, अच्छा। सुना होगा ना। हाँ। हाँ, ठीक है। So that's it. We'll stop here for today. Hopefully the nomenclature part is clear. और ये रूल्स सारे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे चल के जब हम कॉमन कंपाउंड्स या फंक्शनल ग्रुप के साथ नेमिंग करेंगे तो ये सारे रूल्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलो।